إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور ترین آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سماجی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، جو عام طور پر انسانوں میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم سورہ ہے کہ ہر آدمی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سماجی جو برائیاں ہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اخلاقی جو برائیاں ہیں جو نظر آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان تمام کا تذکرہ اور ذکر کیا ہے۔ ان میں سر فہرست جس برائی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ فتنوں کی آماج گاہ ہے، اور برائیوں کی وہ جڑ ہے، فساد کی وہ جڑ ہے، بگاڑ کی وہ جڑ ہے، اور وہ غیبت جیسی برائی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے آنے والی باتوں میں تفصیل سے آ جائے گی وہ، لیکن یہ ایک ایسی برائی ہے اللہ نے جس کا یہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی اور آیات ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی احادیث شریفہ بھی موجود ہیں، جنہیں میں انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو احادیث رکھوں گا۔ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ یہ عزتوں کو نوچنے کا نام ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا نام ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھانے کا
کا نام ہے۔ ایک آدمی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ایک تو اس کا بھائی ہے، دوسرا انتقال کر گیا، مرا ہوا ہے، اور تیسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو ایسی چیز سے تشبیہ دی ہے، آدمی اگر سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے آیت کریمہ سنی، اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھائے، کاٹ کاٹ کر کے کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہیں یہ بات ناپسند ہوگی، بہت بری لگے گی۔ اللہ نے آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر غیبت کرنے والے کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کتا دنیا میں یہ واحد جانور ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ شیر ایسا نہیں کرتا ہے، بھیڑیا ایسا نہیں کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی زہریلا جانور، موذی جانور کیوں نہ ہو، اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کتے سے تشبیہ دے کر کے سبحان اللہ اس غیبت کی مذمت کو اللہ تعالی نے واضح کیا ہے۔ چلیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، اور قرآن مجید کے اندر میں نے جیسے کہا کئی اور ایسی آیات موجود ہیں، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہم اور آپ اکثر اس سورہ مبارکہ کو نماز مغرب میں ہو یا نماز عشاء میں تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی مذمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ترجمے سے پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ عالم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح یا اس کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ڈیفینیشن کی ہے اور غیبت کی تعریف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا، اس کی غیر موجودگی میں، یاد رکھو پہلی بات، اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے ذکر کرنا، مزے لے لے کر کے بیان کرنا، مرچ مسالہ لگا کر کے بیان کرنا، اس کی برائی کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تھا تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس کو برا لگتا تھا، اس کو یہ بات ناپسند ہوتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں چٹکلے چھوڑ چھوڑ کر کے، مزے لے لے کر کے اور مذاق اڑا کر کے، تذلیل کر کے، تحقیر کر کے ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اگر وہ آپ کی مجلس میں ہوتا تھا تو آپ کو برا لگتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جو کمی ہم بیان کر رہے ہیں، جو عیب ہم بیان کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ذرا کان کھول کر کے سننا، یہ میرے اور آپ کے دل کی دنیا کو ہلا دینے والی حدیث ہے، اور اللہ کی قسم ہے اگر آپ نے ان باتوں کو غور سے سن لیا، زندگی میں آپ کی ہمت نہیں ہوگی اتنا بڑا جرم کرنے کی۔ میں کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اس کے دردناک سزائیں بھی ہیں اور عذابات بھی ہیں، وقت نے ساتھ دیا تو بیان کروں گا انشاءاللہ، ورنہ آئندہ جمعہ کے لیے مضمون کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنیے،
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उसकी गैर मौजूदगी में अगर वाकई में वो बुराई उसके अंदर है और आप बयान कर रहे, यही तो गीबत है। और अगर उसके अंदर वो कमी, वो ऐब, वो बुराई नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, ये तो बुहतान है, ये तो इल्जाम है, ये इससे बड़ा भी जुर्म है, वो उससे बड़ा भी गुनाह है। सुभान अल्लाह। आप, हम और आप देखें, एक एक लफ्ज पर सही मुस्लिम शरीफ की ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आपने गौर किया और आपने देखा। आज हम और आप जरा जायजा ले अपने समाज का, अपने मजलिसों का, अपने बैठकों का। क्या आज हमारे अंदर और आपके अंदर ये बुराई नहीं मेरे भाइयों? जहां चार मुसलमान बैठ गए वहां गीबतों की महफिल लग जाती है। कोई अपने भाई की गीबत, कोई अपने पड़ोसी की गीबत, कोई अपने दोस्त की गीबत, कोई अपने किसी रिश्तेदार की गीबत, और कोई न जाने किसी की गीबत में लगा हुआ है मेरे भाइयों। और हर कोई अपने, हर आदमी दूसरे की ही शिकायत कर रहा है और दूसरे की तकलीफ को ही बयान कर रहा है मेरे भाइयों। मैं आपको बताऊं, अफसोस की बात तो यह है कि आपसे और हमसे कुछ काम तो होता नहीं है, खुद कुछ काम तो कर नहीं सकते हैं। काम करने वालों पर एतराज करना, काम करने वालों की गीबतें बयान करना, उनकी हौसला शिकनी करना, उनकी हिम्मतों को तोड़ना, ये नऊज़ बिल्लाह ये हमारा आपका शिवा बन गया मेरे भाइयों। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, मैं और आप उस वक्त तक मिसाली मोमिन नहीं हो सकते हैं, आइडियल मुसलमान नहीं बन सकते हैं, बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकते हैं, जब तक मेरी अपनी आजाद से, मेरे अपने हाथ से, आपकी अपनी जात से और आपके अपने हाथ से कि कोई मुसलमान महफूज ना रहे। सुभान अल्लाह। अगर मेरी अपनी जात से, मेरे अपने हाथ से, आपकी अपनी जुबान और हाथ से अगर दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है, याद रखो हम और आप कभी भी आइडियल मुसलमान नहीं बन सकते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया मिसाली मुसलमान, आइडियल मुसलमान, नमूने वाला मोमिन कौन है? जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर मैंने और आपने अपनी जुबान को बेलगाम छोड़ दिया, जब चाहे जिसकी गीबत करे, जब चाहे जिसकी ऐब जोई करे, जब चाहे जिसकी बुराई बयान करे, याद रखो अल्लाह की कसम है अभी मेरे और आपके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है, इस्लाम दाखिल नहीं हुआ है। हमें और आपको अभी ईमान की हलावत और ईमान की मिठास महसूस नहीं हुई है। यही वजह है, एक मौके पर हदीस सुनिए, एक दूसरी हदीस सुनिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तग़ताबुल मुस्लिमीना वला तत्तबिउ औरातहुम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, मुसलमानों की गीबत न करना, मुसलमानों की कमियों को बयान न करना, मुसलमानों की ऐब जोई न करना, उनकी टोह में न लगना, उनकी जासूसी नहीं करना। सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं? अगर आप किसी के टोह में लगे हैं, आप किसी की जासूसी में लगे हैं, आप किसी के ऐब को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, याद रखो अगर यही सलूक अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ करे, आपके ऐब को बयान करे, आपकी कमियों को जाहिर करे, अल्लाह की कसम है क्या होगा? प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह, आप अपने घर में रहेंगे, अल्लाह तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करेगा, तुम्हारे घर में कोई इज्जत ना रहेगी, तुम अपने घर में नीलाम हो जाओगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर वालों के नजदीक तुम्हारी हैसियत नहीं रहेगी मेरे भाइयों। इसलिए हम आपको एक पैगाम देते मेरे भाइयों, एक पैगाम देते हैं कि जो आदमी आपकी गीबत करे या बुराई करे या ऐब जोई करे, कोई बात नहीं है, इज्जत और जिल्लत ही अल्लाह के हाथ में है। इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला सुभान अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। वो आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है, वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता तो नहीं है, अपनी आखिरत वो जरूर बर्बाद करेगा। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, आज उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है मेरे भाइयों। आप देखेंगे गलियों के चबूतरों पर, सियासी अड्डों पर, या इसी तरीके से मेरे भाइयों चाय की होटलों पर आप देखेंगे गीबत करने वालों का तांता लगा रहता है, मजलिसें लगी रहती हैं, महफिलें लगी रहती मेरे भाइयों।
और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों को बुला बुला करके किसी की गीबत करेंगे और किसी की ऐबजोई करेंगे, नऊज़ुबिल्लाह। याद रखो, उलमा ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं और बड़ी बड़ी बारीक बातें भी लिखी हैं। किसी आलिम दीन ने बड़ा अच्छा कहा, सुभान अल्लाह, कि बाज़ दफा ये गीबत करने वाला जो होता है ना, अंजाम के एतबार से ये जादूगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों जानते हैं? जादूगर साल में वो काम नहीं कर पाता है जो गीबत खोर एक दिन में पूरे गांव में आग लगा देता है। बाज़ दफा जादूगर का जादू साल भर में काम नहीं कर पाता है। यही वजह है, मैं मिसालें ना दो, वक्त खत्म हो जाएगा, वक्त की कमी रह जाएगी मेरे भाइयों। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, जानते हैं इन्होंने क्या कहा? मक्के में कोई ऐसा आदमी बताओ जो मेरी बात पूरे मक्के में फैला दे कि उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया है। लोगों ने कहा कि मक्के में एक शख्स है, नाम नहीं लूंगा, नाम उसका बड़ा अच्छा था, उसके नाम के कई लोग हमारे अपने मस्जिद में मौजूद हैं। वो लोगों ने कहा कि वो फला आदमी है, अगर आप उस तक अपनी बात पहुंचा दे वो पूरे मक्के में आग लगाने के लिए अकेला काफी है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? गए और जाकर के उसके दरवाजे पर खड़े होकर के कहा, सोन अल्लाह के बंदे, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फौरन वहां से चीखा चिल्लाया और पूरे मक्के में आन की आन में बात फैल गई कि उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आपकी जिम्मेदारी ये है, पैगाम ये है, हम अपने आमाल के जवाब दे हैं। आप अपने आमाल के जवाब दे हैं मेरे भाइयों। आप अपने आमाल पर नजर रखिए, अपने कमियों पर नजर रखिए, अपनी कोताहियों पर नजर रखिए। आप अपनी कमी दूर करने के बजाय, अपनी खामी दूर करने के बजाय दूसरों की ऐब जोई में लगे हुए हैं। ऐसा ना करो, वो अपने अमल का जवाब दे है और आप अपने अमल के जवाब दे हैं। बहादुर शाह जफर, क्या नाम मैंने लिया, पिछले जुमा में भी इनके बारे में बात आई थी। बहुत बड़े ये शायर थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहा कहते हैं, न थी जब तक अपने गुनाहों पे नजर, न थी जब तक अपने गुनाहों पे नजर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर। जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, तो दुनिया में निगाह में कोई बुरा न रहा। जब अपने गुनाहों पर हमारी नजर पड़ेगी, हमारे सामने कोई भी गुनहगार न होगा। जब अपने कमियों पर नजर न होगी, सारी दुनिया तुम्हारे सामने गुनहगार नजर आएगी मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में फरमाया, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना अस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह ने कहा, किसी बहकावे के बहक में ना आओ। किसी ने कोई बात कह दी है, उसके पीछे ना ले उड़ो। अल्लाह ने कहा, तुम्हारे कान के बारे में, तुम्हारे आंख के बारे में और तुम्हारे दिल के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। जवाब देने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ कल गवाही देंगी, तुम्हारे ये कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे और तुम्हारे ये दिल तुम्हारे खिलाफ सुभान अल्लाह गवाही देंगे। इसलिए इसकी तैयारी कर लो। और आखिरी बात कह करके बात में अपनी समेट रहा हूं कुछ पैगाम पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो ये है मेरे भाइयों कि जानते हैं, गीबत करने वाला दर हकीकत अपनी नेकियां दूसरों को देने वाला होता है। जरा इस नुक्ते को समझना, और समझ लेंगे तो मेरा खुतबे जुमा का जो पैगाम है पहले मेरे लिए है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और उसके बाद यहां जितने सामईन हैं अल्लाह इन सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जानते हैं गीबत करने वाला क्या होता है? गीबत करने वाला दर हकीकत अपनी नेकियां उसको देता है जिसकी गीबत करता है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? आपकी नेकी आपके खाते में न रहे, आपके आमाल में न रहे। गीबत करने वाले के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है, सबसे बड़ी मुश्किल यह है, उसकी नेकियां उसके खाते में रहने के बजाय, उसके आमाल में रहने के बजाय उसके खाते में चली जाती है जिसकी ये गीबत करता है। यही वजह है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे, अल्लाह की कसम है गीबत नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे जिस्म में अगर खारिश है, जिस्म में अगर खारिश लग जाए सारा जिस्म खराब हो जाता है, पूरा बदन खराब हो जाता है। इंसान के अंदर गीबत की बीमारी आ जाए, इसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और जानते हैं उसका इलाज क्या है? अल्लाह का जिक्र, ये दवा है। क्या है?
कहा अल्लाह का जिक्र ये दवा है और गीबत ये बीमारी है। आप बीमारी लेंगे या दवा लेंगे, या आपके ऊपर है मेरे भाइयों, आपकी मर्जी है। बीमारी में रहना चाहते हैं या दवा लेना चाहते हैं। अल्लाह का जिक्र ये दवा है और गीबत ये बीमारी है। और यही वजह है मेरे भाइयों, यही वजह है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल एक आदमी आएगा, सुभान अल्लाह, एक शख्स आएगा, नेकियों का जखीरा होगा उसके पास, लेकिन जब हिसाब व किताब की बात आएगी, आमाल की बात आएगी, मीजान पर खड़ा किया जाएगा, तराजू के पास आमाल तोले जाएंगे, एक एक करके सारी नेकियां उसके वो लोग ले लेंगे जिसकी दुनिया में इसने हक तलफी की थी। और ये बंदा, सुभान अल्लाह, सुनिए, पहले एक बात मैं आपको बताऊं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ है ना, तो उनके बारे में एक बात बता दूं। बहुत बड़े ये इमाम गुजरे हैं, इनके पास एक शख्स आया, ऐसे दिल रखो, अपने दिल बड़े रखो इंशाअल्लाह, बोलो कलेजा और जिगर बड़े रखो इंशाअल्लाह ताला। सुनिए, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा, शेख फला आदमी ने आपकी गीबत की है, भड़के नहीं है, आस्तीन नहीं चढ़ाए। क्या बोला? शेख फला आदमी ने आपकी गीबत की है। मुस्कुराए, क्या किए? मुस्कुराए और कहा, जाओ घर में से खजूर लेकर के आओ। खजूरों को लाया गया प्लेट में, कहा ये खजूरों का तोहफा उसको ले जाकर के दे दो जिसने मेरी गीबत की है, और उससे कहो तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तूने अपनी नेकियां मुझे दे दी है, तूने अपनी नेकियां मुझे दे दी है, मैं नेकियां दे नहीं सकता हूं, बदले में मैंने खजूरों का तोहफा दिया है। ये गीबत करने वाला शख्स, सुभान अल्लाह, दर हकीकत ये अपनी नेकियां उसको दे रहा है जिसकी ये बुराई और गीबत कर रहा है। क्या चाहते हैं आप? नेकियां चाहते हैं? सुनिए, और मैं आपको बताऊं, अफसोस की बात यह है, आज उम्मत मुस्लिमा का जायजा लिया जाए, बात बड़ी इख्तिसार से मैं कह रहा हूं, हर आदमी दूसरे शख्स की शिकायत में लगा हुआ है। बाप को बेटे से, तो बेटे को बाप से, तो भाई को भाई से, तो शौहर को बीवी से, तो बीवी को शौहर से, इमाम को मुक्तदियों से और मुक्तदियों को इमाम से, मुसल्लियों को जिम्मेदारों से, जिम्मेदारान को मुसल्लियों से, डॉक्टर को मरीजों से और मरीजों को डॉक्टर से। हर आदमी दूसरे की शिकायत में लगा हुआ है, तो हमें लगा हुआ है। ऐसा लगता है इस उम्मत को अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, नऊज़ बिल्लाह। तुम दुनिया में आने का मकसद भूल गए हो, किस लिए तुम दुनिया में आए थे, तुम्हें बर्पा किस लिए किया गया था, मकसद को तुमने फरामोश कर दिया। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरे भाइयों, तुम्हारा ये काम नहीं था, तुमने इसको अपना मिशन बना लिया है। और एक आखिरी बात कह करके बात में वक्त खत्म करूंगा। जैसे गीबत करना हराम है, ऐसे गीबत सुनना भी हराम है। किसी मुसलमान की अगर तुम्हारे सामने गीबत की जाए, अल्लाह की कसम है, उठ करके वहां से चले जाना। किसी की गीबत नहीं सुनना, करना भी हराम है और सुनना भी हराम है, जानते हैं। और गीबत चाहे इशारे में हो, चाहे किनायों में हो, चाहे सरी लफ्जों में हो, चाहे नक्काली करके हो, किसी भी तरह हो, बहर सूरत ये हराम है। एक मिसाल बात मैं करूं आपके सामने, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कौन है ये? सहाबिया है, सुभान अल्लाह। क्या कहना इनके मकाम और मर्तबे को। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार क्या किया, माई जो है सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कह दिया, शौकन थी ना, कहीं बशरियत गालिब आ जाती थी, इंसानी फितरत है ये। इन्होंने अल्लाह के नबी के सामने कह दिया, सफिया वो तो पस्त कद की है। क्या कहा? पस्त कद की है, छोटे कद की है। ये हमारे लिए मामूल है किसी के बारे में ऐसे अल्फाज कहना। बोले सफिया पस्त कद की है। सुनिए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ आयशा लक़द कुल्ति कलिमतन लमुज़िजत बिमाइल बहर। ऐ आयशा, तूने ऐसा जुमला कह दिया है ना, अगर ये जुमला समंदर के पानी में डाल दिया जाए,
सारा समंदर का पानी खराब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक समंदर है, 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से माई आयशा ने इतना कहा कि वो तो छोटे कद की है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तुमने ऐसी बात कह दी है, अगर तुम्हारे जुमले को समंदर के पानी में मिला दिया जाए सारा पानी बदबूदार हो जाएगा। सोचो हम क्या क्या नहीं कहते हैं और क्या क्या नहीं बोलते हैं, किसी के पेट पीछे कैसे कैसे जुमले नहीं, कड़वे कसीले जुमले कहते हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह को मेरे भाइयों? और आखिरी बात यह है, मेराज की बात सुनिए ना, आखिरी बात है, वादा किया मैंने। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लम्मा और इजाबी मारा तो बेकौम, नबी ने फरमाया मुझे मेराज का शर्फ हासिल हुआ। दौरान सफर मैंने देखा मेरा गुजर कुछ ऐसी कौम के पास से हुआ जिन कौम के लोगों के नाखून तांबे के थे, नाखून तांबे के थे, और यखबशून वजूहुहुम व सुदूरुहुम, कहा वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील नबी ने फरमाया, कहा हाउला लदीना यअकुलूना लहुम अन्नास, कहा अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे, गीबतें करते थे, बुराइयां करते थे, अपनी कमी को छोड़ करके दूसरों की कमियों को उछालते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आज इनके नाखून को तांबे का बना दिया है, सुभान अल्लाह, और ये अपने सीनों को और चेहरों को नोच रहे हैं। इसलिए आखिरी बात मेरे भाइयों, बात खुतबे जुमा का खुलासा ये है, अपनी जात की फिक्र करो, अपनी इस्लाह करो। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है? आज या रोजाना आप जो है 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करते हैं, सुभान अल्लाह। क्या आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं? क्या आप कुरान की तिलावत करते हैं? रोजाना कितना सफा कुरान पढ़ते हैं? रोजाना कितना रुपया खैरात करते हैं? रोजाना कितने मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं? रोजाना कितने किसके काम आते हैं? कभी आपने अपनी भी फिक्र की है? अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हें अपने अमल का हिसाब देना है, अपनी फिक्र करो। तुम्हारी नमाजें कितनी हो रही हैं? सफ़े अव्वल में हो रही हैं, जमात से हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं? पहले आप अपनी फिक्र करो। कल क़यामत के रोज मुझे और आपको अपने अमल का हिसाब देना है, सामने वाला अपने अमल का हिसाब देगा। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला